Hello everyone, welcome back. In today's session we will start with the science of class 8. We will start with the first chapter, that is crop production and management. Up till this time we have completed the first chapter of mathematics. You have solved the test as well, most of you. Clear? Now we will start with science subject. The first chapter in your syllabus of science is crop production and management. So whatever things are related to with this topic, that whole we are going to discuss in this chapter. Clear? So let's start. What is mean by crop? Crops. This word we are coming across many times. ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है, बहुत लोगों के मुंह से सुना है, न्यूज में सुना है, बुलेटिन्स में सुना है, न्यूज़पेपर में रीड किया है. क्रॉप्स क्रॉप्स क्रॉप्स. व्हाट इज मीन बाय क्रॉप? व्हाट इज मीन बाय क्रॉप? Crop means when same type of plants are grown on a large scale at a field or on a field is called as crop. एक ही वैरायटी के जो स्पेसीज है या एक ही प्लांट स्पेसीज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही जगह पे जब ग्रो की जाती है, दैट इज मेन बाय क्रॉप. अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट दिस क्रॉप इज रिलेटेड विथ? दिस क्रॉप इज रिलेटेड विथ द एग्रीकल्चर. किससे? एग्रीकल्चर से. Now what is meant by this agriculture? एग्रीकल्चर मतलब जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? खेती करना या फार्मिंग भी बोलते हैं, और सिंपली खेती. नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस in which many crops are grown to get the food from it. Understand? The food on the contrary, the farmers are getting benefit, financial benefit from these agriculture practices. Now, this agriculture does not means only to give you grains like cereals, pulses, but every that thing which we are using, चाहे वो क्लोथ्स हो, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी हम खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं बाकी चीजों के लिए. फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग पल्सेस फॉर डिफरेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल ऑयल सीड्स. ये जो सारी चीजें हैं ये सारा मिला के बनता है एग्रीकल्चर. तो इस एग्रीकल्चर में कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं? एग्रीकल्चर में लिए जाते हैं सीरियल्स. Cereals like wheat, maize, bajra, jawar, rice, millet. Then आते हैं आपके pulses, all leguminous crop. For example, gram, green gram, brown gram, peas, soyabean, etc. Then आते हैं आपके oil seeds. Oil seeds, for example, sunflower, mustard, groundnut, soybean as well. Then cashew is also there, almond is also there, coconut is also there. Then fruits, all type of fruits which we eat. Then fruit vegetables, fruits and vegetables. ये fruits and vegetables means both type of vegetables, leafy vegetables, root vegetables, stem vegetable and fruit vegetable as well. So all these are generally the types of crops. इसमें और एक आता है fodder crop. Fodder crop means the crops which we are using as a food for the animal. The food of animal is called as fodder. So such crops are also there which are
मोस्टली कल्टिवेटेड फॉर द पर्पज ऑफ एनिमल फीड. ठीक है. नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ different variety or types of the crops which we are taking, but on the basis of seasonal variations and the conditions favorable for the growth of that particular crop, the crops are mainly divided into two seasons or two main type, जिसके अंडर हम ये अलग अलग crop लेते हैं. So which are those? These are खरीफ and रबी. खरीफ सीजन भी बोलते हैं या खरीफ क्रॉप्स भी बोलते हैं, रबी सीजन भी बोलते हैं, रबी क्रॉप भी बोलते हैं. कि ऑफकोर्स खरीफ सीजन में आने वाले जो क्रॉप्स है या खरीफ सीजन में जो क्रॉप्स हम लेते हैं दैट आर खरीफ क्रॉप, और जो रबी सीजन में लेते हैं दैट आर रबी क्रॉप्स. सो दिस क्रॉप विच आर मेनली कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन आर रेफर एज द खरीफ क्रॉप. सी फ्रेंड्स, अप टिल दिस टाइम we can say that हाँ कि मानसून का टाइम जून टू सितंबर अक्टूबर तक होता है या फिर इस पीरियड तक होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा कहना मुश्किल हो गया है क्योंकि nowadays any time rain falls and it happens, but still we are with nature and we can say that the rainy season from June, July to August, September का जो सितंबर अक्टूबर का जो टाइम है that is because monsoon rainy season occurs little bit variation in the month starting from the June to July and end to August to September. ठीक है. Sometime if monsoon is late, that time it goes little bit delay. So which crop are there which we cultivate in Kharif season? See, as this is a rainy season means ultimately जो crop हम इस season में लेने वाले हैं उनको लगता है ज्यादा पानी. So the crops which need more and more water and which are mostly depend upon the rainy season, rainwater are referred as the kharif. Sometimes we do have water like we have wells, we have tube wells, bore wells या फिर कोई river जो है हमारे खेती के बाजू से जा रही है तो we can make a arrangement to get that water for irrigation. But in some region of our country some people are completely depend upon the rainfall for their crops. Okay, that's why altogether इतना सारा मिलके खरीफ क्रॉप कौन से that will see. इसमें mainly आता है paddy. Paddy you know that it is mean by rice. क्या होता है इसका मतलब? rice. It is a crop which needs maximum amount of the water. That's why it is mainly cultivated in the Kharif season. Then your maize is there, cotton is there, soybean is there, many are there. These are few examples which I have given to you. Now, next is Rabi season. Which one is Rabi season? This Rabi season or Rabi crops are the crops which are mainly taken in the winter season. Winter season means what will be the specialty about these crops? These crops need less temperature, less water, less moisture. ठीक है. So of course the crops which need all these things in less quantity, for example less temperature, less water, are grown in the Rabi season or winter season. Now winter season starting from November, December, then January, February तक हम लेते हैं. ठीक है. So wheat, gram, peas, mustard, all these are the some of the rabi crop which are taken into winter season. ठीक है. Now इसके अलावा इन सीजन के अलावा एक चीज आपने सुनी होगी, क्रॉप रोटेशन. क्योंकि दो सीजन के बीच का जो गैप है हार्डली 2-3 मंथ्स का, उस 2-3 मंथ्स के गैप में या फिर 3-4 मंथ के टाइम स्पैन में एक और क्रॉप भी लिया जाता है. वन मोर क्रॉप इज ऑल्सो टेकन इन द फार्म. वाई? बिकॉज इट इज नाउअडेज एडवांस्ड क्रॉप रोटेशन टेक्नोलॉजी, जिससे क्या होता है एक सीरियल क्रॉप अल्टर किया जाता है पल्सेस क्रॉप से, पल्सेस का क्रॉप अल्टर किया जाता है ऑयल सीड क्रॉप से, सो दैट द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द लैंड, सॉइल, फार्म रिमेन्स constant, remains flourished. Clear? Now
when we have to start with the actual agricultural practices, we have to go step by step. And which are those steps? These are mentioned over here. Which first is preparation of soil. जहां पे हमें खेती करनी है, जिस पीस ऑफ लैंड में, चाहे वो 1 एकड़ हो कि 10 एकड़ हो, दैट सॉइल वी हैव टू मेक रेडी फर्स्ट. उस जमीन को हमें कल्टीवेशन के लिए पहले रेडी करना पड़ता है. ठीक है, ऐसे नहीं कि जब बस गए सीड को सो कर दिया हो गया हमारा क्रॉप. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल रेडी फॉर द कल्टीवेशन. वी डू आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ बिफोर वी डू समथिंग बेटर. Isn't it? एग्जाम को जाने से पहले आप प्रिपेयर करते हो खुद को. आप कहीं बाहर जा रहे हो तो खुद प्रिपेयर हो जाते हो, रेडी हो जाते हो. वैसे ही इन दैट वे ओनली वी हैव टू मेक द सॉइल रेडी. किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए. ठीक है, उसके भी अलग अलग स्टेप्स है, दैट आई विल टेल यू लैटर. देन इज योर सोइंग. सोइंग करनी है हमें. तो सोइंग में भी बहुत सी सारी चीजें आती है. कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, किसकी करनी है. मतलब सीड्स, कौन से सीड्स का सोइंग करना है. ठीक है, गेहूं का करना है. फिर गेहूं के कौन से सीड्स लेने हैं, कौन सी वैरायटी लेनी है. ओके, एक्स वैरायटी हमने ले ली. फिर उसका सीजन क्या है, उसका टाइम क्या है, एक्चुअली उसकी सॉइल रिक्वायरमेंट क्या है. दैट ऑल थिंग्स वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. दैट कम्स अंडर सोइंग. फिर भी वो मैन्युअली करनी है कि किसी मशीन से करनी है कि कैसे करनी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. फिर उसमें एक पॉइंट आएगा, ट्रांसप्लांटेशन. दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऑल्सो. शॉर्टकट में लिखा है. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर before we take any crop or before we sow the seeds. First of all, we have to make that soil nutrient rich, humus rich, so that whatever crop will be grow in that field will be healthy and more productive. उससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सीरियल्स हो, पल्सेस हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, जो भी हो. हमें उस फील्ड को पहले से ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं ताकि सोइंग के बाद, कल्टीवेशन के बाद उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए. देन इरिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड, दैट इज इरिगेशन. आजकल इरिगेशन की वजह से, अभी इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ periodic supply of the water to the crop plants. periodic supply, periodic मतलब हाँ, आज पानी दे दिया, फिर अभी 2 घंटे बाद दिया, फिर 4 घंटे बाद दिया, ऐसा नहीं है. या फिर आज दिया, फिर 1 हफ्ते के बाद, फिर 2 हफ्ते के बाद, फिर ऐसा भी नहीं है. हमें हमारे क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वाटर सप्लाई करना पड़ता है. अभी वो जो टाइम इंटरवल है, दैट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स. व्हाट? फर्स्ट, टाइप ऑफ क्रॉप. सेकेंड, टाइप ऑफ सॉइल. थर्ड, क्लाइमेटिक कंडीशन. इन सारी कंडीशंस को कंसिडर करने के बाद ही हमें इरिगेशन का पैटर्न डिसाइड करना होता है. ठीक है, अभी इरिगेशन जो है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, कुछ मॉडर्न मेथड्स है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. फिर उसका सोर्स क्या है इरिगेशन का, मतलब वाटर का सोर्स क्या है, रेनफॉल है कि रिवर है कि वेल है कि क्या है. ऑल दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. ठीक है. देन रिमूवल ऑफ वीड, क्रॉप का दुश्मन वीड. ये जो सारी चीजें है ना, एकदम ध्यान से पढ़ना इस क्लास में. व्हाई? बिकॉज इन क्लास 9th वेरी फर्स्ट चैप्टर इज एग्जैक्टली लाइक दिस, लिटिल बिट इन डिटेल, बट बेसिक थिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर. 8th का फर्स्ट चैप्टर इज द बेस ऑफ 9th का फर्स्ट चैप्टर, सो प्रिपेयर इट वेरी वेल. सो रिमूवल ऑफ वीड. व्हाट इज वीड? Where does it occur? Where does it grow? Why to remove? How to remove? How many times we have to remove? All these things we will study under this topic, removal of weed. Then harvesting. सब कुछ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब कुछ हो गया. ये harvesting. What is mean by harvesting? Generally, cutting of the tree is cutting of the crop is known as harvesting. जो भी हमने crop cultivate किया है, it reaches to the मेच्योरिटी. एक सर्टन स्टेज आती है जब वो क्रॉप
उसकी मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाता है, चाहे वो लीव्स हो, लीफी वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो या सीरियल्स हो, पल्सेस हो, जो भी हो, उसके बाद उनको रिमूव करना पड़ता है पेरेंट प्लांट से, राइट? अदरवाइज वो और मेच्योर या और रेप हो जाने के बाद दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस. सो हाउ द हार्वेस्टिंग इज डन, what is the proper timing of harvesting of particular crop and how does this harvesting is carried out, मतलब मैन्युअली करते हैं कि किसी मशीन से करते हैं, that we will discuss in this topic of harvesting. And last, storage of food grains. Whatever grains we have got means जो हमारा yield जो हमें हमारे खेती से मिला है, प्रोडक्शन जो हमारे खेती से मिला है, उसको हम तुरंत मार्केट में नहीं बेचते, right? We will not sell it. Why? We may store it or we may wait for the particular cost of this particular product in the market. Till that time we have to store it. Now in this period of storage, that yield, that product, that grains should not undergo any damage. That's why what are the proper methods of storage of grains that we will see in the next session.